गाइस, आज की क्लास में हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SN1 SN2 मैकेनिज्म्स। जनरली दो तरह की प्रॉब्लम्स वो पूछते हैं, one related to stereochemistry and another related to reactivity. Before I take those problems, I will tell you in brief the main differences between SN1 and SN2 mechanisms. Guys, when a substrate like RLG, LG is leaving group, is attacked by reagent nucleophile, nucleophilic substitution occurs. Now, this reaction can take place via SN1 mechanism or SN2 mechanism. Generally, the nucleophilic substitution takes place via SN1 mechanism or SN2 mechanism. First, I will talk about SN2 mechanism. What happens in SN2 mechanism? SN2 mechanism, nucleophilic substitution bimolecular, second order reactions, whatever substrate and reagent you take, the rate will be dependent on the concentration of both. Guys, three important assumptions of this mechanism are: one is it is a single step reaction, concerted reaction. Second, nucleophile attacks from backside of the leaving group. And third, non-bonding homo of nucleophile, highest occupied molecular orbital. Highest occupied molecular orbital. Non-bonding homo of nucleophile interacts with lowest unoccupied molecular orbital of RLG, that is sigma star. Guys, with the help of molecular orbital theory, we can explain these terms. If you see this RLG, the carbon with which LG is connected, the carbon is electrophilic carbon, and nucleophile is giving its electron pair to that carbon. And we are talking about empty anti-bonding molecular orbital of this RLG bond. And that we have said LUMO here, lowest unoccupied molecular orbital. And the orbital which is carrying this electron pair, that we have said as HOMO, highest occupied molecular orbital. Guys, to understand these assumptions in a better manner, I will take an example. If 100% optically pure S2-bromooctane is subjected to hydrolysis in the presence of concentrated NaOH, and the product formed is found to be 100% optically pure R2-octanol. This indicates that mechanism followed is SN2. Guys, पहले reactants और products draw कर लेते हैं. Guys, ये substrate है S2-bromo octane
और ये प्रोडक्ट है आर 2-octanol। अब एग्जाम्पल में हमने क्या बोला, ये ऑप्टिकली प्योर 100% ऑप्टिकली प्योर है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एस लिखा हुआ है, और ये 100% ऑप्टिकली प्योर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आर लिखा हुआ है। आपको इस एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने SN2 के लिए वो बैक साइड अटैक क्यों कंसीडर किया, हमने SN2 के लिए वन स्टेप क्यों कंसीडर किया। एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। गाइस पहले जो भी एजम्पशंस हमने लिए हुए थे SN2 उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्शन करा लेते हैं। तो पहली चीज, अटैक OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस कहाँ से होगा, बैक साइड अटैक है। बैक साइड किसके रिस्पेक्ट में, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट। लेट मी ड्रॉ द ट्रांजिशन स्टेट ऑल्सो। ये ट्रांजिशन स्टेट है, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, द स्टेट वेयर फ्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली ब्रोकन एंड फ्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली फॉर्म। सो ये जो आपको ये CBr बॉन्ड दिख रहा है ना, लीविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में, ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, ये जो न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है, इनके बीच का बॉन्ड, ये पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड है। Guys, we all know whatever assumptions or postulate we take in a scientific theory, those postulates, assumptions are taken on the basis of experimental results, experimental observations. तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा जिसके बेसिस पे हमने बैक्सर अटैक कंसीडर किया, तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो है इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ना जिसके साथ Br कनेक्टेड है, ये कार्बन यहाँ पर कायरल है, राइट। यू कैन सी चारों ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंट है, एक H लगा हुआ है, एक Br, एक CH3 और एक C6H13 लिखा हुआ है। सो ये चारों ग्रुप्स अलग है, इसलिए ये कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन। और इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन का प्रोडक्ट में जब हमने कॉन्फ़िगरेशन चेक किया तो वो इन्वर्टेड दिखा। तो इन्वर्जन के लिए हम बैक साइड अटैक कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। गाइस थियोरेटिकली भी आप पूछ सकते हो कि कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यानी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बैक साइड अटैक का। ये तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने एजम्पशन ले लिया, तो साइंटिफिकली हम उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो Br है, लीविंग ग्रुप है, ये भी निगेटिवली चार्ज्ड है, और ये जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये भी निगेटिवली चार्ज्ड है। तो दोनों अगर निगेटिवली चार्ज है तो रिपल्शन मिनिमाइज कब होगा, रिपल्शन मिनिमाइज तब होगा या मिनिमम रिपल्शन तब होगा जब अटैक बैक साइड से हुआ। यू कैन सी हियर द एंगल, यहाँ पर हमने कितना मान लिया है, 180 डिग्री। अच्छा, ये रिपल्शन मिनिमाइज करने की क्या जरूरत है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, ये बैरियर का काम करता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब तक ट्रांजिशन स्टेट, ये बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। अच्छा, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रहा है मतलब उसका एनर्जी नीचे आ रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब है मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर नाउ, so rate will automatically increase. So transition state stability favors the formation of product. और अगर हमने यहाँ फ्रंट साइड अटैक किया होता तो Br और OH का रिपल्शन होता तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं हो पाता। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, कि अगर फ्रंट साइड अटैक होगा तो Br एक बल्की एटम है, तो OH माइनस को स्टेरिकली रिपेल करेगा,
Again, as a result, attack will not be feasible. Guys, एक और चीज, फॉर्चुनेटली ये जो Br है जो रिएक्टेंट में लगा हुआ है, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी था. अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और C6H13 का जो कार्बन है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कायरल कार्बन, उसका सेकेंड प्रायोरिटी है, और ये CH3 वाले कार्बन को थर्ड प्रायोरिटी बोलते हैं, और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी. राइट, ये प्रायोरिटीज हम CIP रूल पे डिसाइड करते हैं, यू आर अवेयर ऑफ दैट. अब ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी ब्रोकन ब्रिज में, एंड वी ऑल नो if fourth priority group is on broken wedge, then we can directly check the movement 1 2 3. Here it is coming anti-clockwise, here it is coming anti-clockwise, so configuration is S. इसमें देख लो, OH यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी है, C6H13 सेकेंड प्रायोरिटी है, CH3 थर्ड प्रायोरिटी on H fourth priority. Here also fourth priority group is already on broken wedge, so directly you can check 1 2 3 movement, and here it comes clockwise, इसीलिए configuration R लिखा हुआ है. गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फॉर्चुनेटली ये जो Br है इसका और OH का, Br का अपने केस में फर्स्ट प्रायोरिटी होना और OH का अपने केस में यानी प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी होना, वो फॉर्चुनेटली है. इसीलिए आप बड़े आसानी से बता पा रहे हो कि S से R हो गया तो उसको इन्वर्जन बोलेंगे, लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं पाएगा. अगर यहाँ मान लीजिए ऐसा होता, कोई ऐसा ग्रुप लगा होता जो जिसका प्रायोरिटी OH की रिस्पेक्ट में फर्स्ट हो जाता, तो फिर ये R और S सब बदल जाता. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि SN2 रिएक्शन में S से आपको R प्रोडक्ट मिले या R से S मिले या डेक्स्ट्रो से लेवो मिले. वी कैन नॉट से. इन्वर्जन का केवल यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रायोरिटीज लेटर से सेम हो जाएंगी तो आपको वो इजीली विजिबल होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, अदरवाइज वी कैन नॉट से. तो इन जनरल हम उसको नहीं बोल सकते कि R S हो जाएगा या S R हो जाएगा. फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप था उसकी प्रायोरिटी उसके कायरल कार्बन में नंबर 1 थी, और OH जो ग्रुप अटैच हुआ उसकी प्रायोरिटी भी नंबर 1 थी. गाइस, इस ट्रांजिशन स्टेट को भी देख लो. ये ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइक यहाँ देखो, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री दिख रही होगी अगर ओवरऑल देखोगे, बट ये जो कार्बन है इसको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं. सो इन ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हियर. गाइस, as I told you earlier that they may ask questions related to stereochemistry and reactivity. तो जैसे यहाँ पहले आप रिएक्टिविटी की बात कर लो, तो दो चीजें हैं यहाँ पर. रिएक्टिविटी अगर SN2 रिएक्शन के लिए आपको डिसाइड करना है, रिएक्टिविटी किसके लिए? SN2 रिएक्शन के लिए. तो दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है जो बैकसाइड अटैक हुआ है ना गाइस, ये जो ग्रुप्स कनेक्टेड हैं ये बैकसाइड अटैक के लिए हिंड्रेंस का काम करते. सो ये जो कार्बन है जिससे ये लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन लेस क्राउडेड होना चाहिए. जितना ये लेस क्राउडेड होगा उतना रिएक्टिविटी यानी बैकसाइड अटैक ज्यादा फीजिबल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा. यानी कि पहला जो फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं वो है स्टेरिक हिंड्रेंस. ये जितना कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा. अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. बट दूसरा फैक्टर ये ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी. अभी देखो हमने बोला ना, अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैरियर क्रॉस कर पाएंगे, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैरियर क्रॉस कर पाएंगे तो प्रोडक्ट बनने का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी. देखो इंटरमीडिएट यहाँ है नहीं तो हम उसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते ना. We can only talk about stability of transition state और stability of product. तो यहाँ पर stability of transition state बहुत मैटर करता है रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए. तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि अगर तुम्हें SN2 की रिएक्टिविटी चेक करनी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करोगे. लेस क्राउडेड अगर ये कार्बन है विथ विच लिविंग ग्रुप इज कनेक्टेड तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी.
इसीलिए मिथाइल जो हैलाइड है, लेटर से मिथाइल हैलाइड, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 रिएक्शन के लिए। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी लूंगा। उससे पहले जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, अगर उससे रिलेटेड आएगा तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत आसान है। आपको जो भी दिया, आपको फ्लाइंग वेज फॉर्मूला दे सकता है, आपको वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे सकता है। इट्स वेरी इजी टू हैंडल। मान लीजिए कि लीविंग ग्रुप ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पर G1, G2, G3 मैंने ग्रुप्स लगा दिए। तो जब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा प्रोडक्ट में, तो इन्वर्जन शो कैसे करेंगे? 100% आपको इन्वर्जन शो करना है। तो हम लोगों ने लर्न किया था आइसोमेरिज्म चैप्टर में कि दो ग्रुप्स के बीच में अगर एक इंटरचेंज हो जाए तो उसमें इन्वर्जन हो जाता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और मैं एक इंटरचेंज कर दूं तो ये लेवो रोटेटरी हो जाएगा, राइट? कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में इंटरचेंज। तो उसी तरह से इन्वर्जन अगर प्रोडक्ट में दिखाना है तो आपको एक इंटरचेंज दिखाना पड़ेगा। लेकिन इंटरचेंज अब इसमें क्या है, लीविंग ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट, फिर इंटरचेंज आपको दिखाना है। तो अब मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियोफाइल यहीं लिख दिया और बाकी ग्रुप्स का पोजिशनिंग भी वही है, तो ये एक्चुअली आंसर गलत है SN2 रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आंसर नहीं हो सकता। हमें एक इंटरचेंज दिखाना है। आप न्यूक्लियोफाइल यही रखो, आप G1 G2 एक्सचेंज कर दो, या फिर G2 G3 एक्सचेंज कर लो, या फिर न्यूक्लियोफाइल को G1 से एक्सचेंज कर लो, न्यूक्लियोफाइल को G3 से एक्सचेंज कर लो, न्यूक्लियोफाइल को G2 से एक्सचेंज, कोई एक करना है। एंड बिलीव मी, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट्स सेम प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिकल है। तो कोई एक आपको करना है, या फिर ऑप्शन में जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंगली कोई एक आपको दिखा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि इस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर लीविंग ग्रुप के बदले न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर उसको मैंने G2 से एक्सचेंज कर दिया, ये बाकी अपनी जगह रहने दिया, G1 G2 G3 यहाँ लिख दिया। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 100% इन्वर्जन को इंडिकेट कर। Guys, I will take the questions related to these concepts, but before that I will tell you about SN1 mechanism. So let's see the characteristics of SN1 mechanism. Guys, SN1 रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। The main assumption of this SN1 reaction is reaction takes place via carbocation. So in this mechanism, we assume formation of intermediate carbocation. अच्छा, अब ये assumption क्यों लिया गया होगा? कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होंगे इसके पीछे। तो इसके पीछे एक जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, कि यहाँ पर आपको इन्वर्जन मिलता है। जैसे आप SN2 केस में 100% इन्वर्जन लिखते थे, यहाँ पर इन्वर्जन मिलेगा और रिटेंशन भी मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का। इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन डोमिनेट करता है। अब ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इन्वर्जन और रिटेंशन मिलता है, जबकि SN2 में 100% इन्वर्जन था। एक ये चीज हो गई जिसके लिए आपने कार्बोकैटायन कंसीडर किया। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख दूं, CH3 CH3 CH, इधर Cl लगा हुआ है, CH3, ये इसका हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस में Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, ये है, ठीक है। तो आइडियली जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए। जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है उसके साथ आपको OH लगा देना चाहिए, ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना।
लेकिन ये प्रोडक्ट तो मिलता ही है, साथ में ये प्रोडक्ट भी मिल जाता है। एंड ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और जिस प्रोडक्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए माइनर प्रोडक्ट है, ये कम अमाउंट में मिलता है, ये ज्यादा अमाउंट में मिलता है, इसलिए इसको मेजर बोलते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वाला जो है ऑब्जर्वेशन, उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या एज्यूम करना पड़ता है, कार्बोकेटाइन। तो ये सब डिस्कशन में आ जाएगा अभी। Guys, let me take a simplest example for SN1 reaction. Let us say RLG is attacked by a nucleophile, and in SN1 reaction, as we know, first carbocation is formed. So that will be step 1 for us. RLG will give R plus, and then this R plus in step 2, R plus is attacked by nucleophile, और फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सो जनरली हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो गया। तो ग्राफिकल एनालिसिस अगर आप करोगे डेल्टा जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफ 2 स्टेप्स के लिए आप सिंपली ऐसा दिखा सकते हो। मेनी टाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफिकल एनालिसिस। तो ये अपने लिए ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया, और ये इंटरमीडिएट है। यहाँ पर आप रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, है ना। तो हमने पहले क्या लिख रखा है कि SN1 रिएक्शन में आपका इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। तो ये दोनों कैसे मिल जाते हैं? तो ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इसी पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये है ट्रायगोनल प्लेनर। कोई एग्जांपल आप ले लो एल्काइल कार्बोकेटाइन का, है ना। जैसे यहाँ पर C+ मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप ग्रुप H लगा दो, यहाँ पर ग्रुप आप CH3 लगा दो, यहाँ पर ग्रुप आप C2H5 लगा दो, है ना। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस तरफ से करेगा, एबव द प्लेन करेगा कि बिलो द प्लेन करेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अटैक करने की हाफ होगी, एबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। तो 50% एबव द प्लेन, 50% बिलो द प्लेन। तो आपको कितनी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ प्रोडक्ट में मिलेंगे? 2 कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे, राइट ना। तो अगर आप एक में न्यूक्लियोफाइल ऐसे कनेक्ट करते हो, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको एक इंटरचेंज के साथ लिखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिख दिया H, ऐसे यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आपने CH3 लिख दिया, यहाँ पर C2H5 लिख दिया, तो यहाँ पर आपको देखो इंटरचेंज विजिबल होगा, राइट। तो ये 2 प्रोडक्ट्स मिले, ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस मिले, राइट। अब अगर इसका कंपैरिजन तुम रिएक्टेंट से कर लो, रिएक्टेंट से, तो तुम्हें पता चलेगा कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इन्वर्जन कौन सा है और रिटेंशन कौन सा है। गाइस, अभी जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने Cl कनेक्ट कर दिया, यहाँ C2H5 कनेक्ट कर दिया। ऑलरेडी हमने फ्लाइंग वेज में रिएक्शन लिख दिया था SN2 का, तो इस बार मैं जानबूझकर फिशर प्रोजेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, ये अपने लिए सबस्ट्रेट हो गया। अब इसका लेटर से आपने हाइड्रोलिसिस सोचा, है ना। तो Cl विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय दिस OH। तो जो प्रोडक्ट होगा, अगर आपने Cl हटाया और उसी पोजीशन पे OH लगा दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, राइट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डेक्स्ट्रो लेवो हो गया या लेवो डेक्स्ट्रो हो गया, हमने यहाँ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोला। हमने ये नहीं बोला डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रहा या लेवो लेवो रहा। प्लस दूसरा जो इन्वर्जन है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि हम, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लीविंग ग्रुप है और ये जो OH कनेक्ट हो रहा है, ये सेम नहीं है।
तो हम नहीं बोल सकते कि डेक्स्ट्रो लेवो बनेगा, लेवो डेक्स्ट्रो बनेगा। हाँ, अगर आप ऐसा बोल पाओ कि लेटर से आई यहाँ पर लीविंग ग्रुप है और आई ही न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तो आप डेफिनेटली बोल दोगे कि डेक्स्ट्रो लेवो या लेवो डेक्स्ट्रो है। लेकिन यहाँ पर Cl इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय OH, तो यू कैन नॉट से, क्योंकि प्रोडक्ट बदल गया, आपका रिएक्टेंट अलग है, वो मिरर इमेजेस नहीं है। अब ये यहाँ देखो, इन्वर्जन कैसे दिखाओगे? एक इंटरचेंज, एज आई टोल्ड यू, आप इस Cl के बदले OH लगाओ और C2H5 से एक्सचेंज कर लो, या फिर CH3 से कर लो, या फिर H से कर लो, या इन दोनों को कर लो और यहाँ OH रहने दो। तो मैं यहाँ पर OH इधर लगा रहा हूं, यानी मैंने CH3 से उसको एक्सचेंज कर लिया। वन इंटरचेंज का मतलब हो जाएगा कि ये इन्वर्जन को शो कर रहा है, और ये किस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है? ये रिटेंशन को शो कर रहा है, राइट। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? इन्वर्जन डोमिनेट करता है। देखो, दो मिल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कार्बोकैटायन के बेसिस पे, है ना, कि सिंस कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन, सो यू आर गोइंग टू गेट टू कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। तो अगर टू कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं, अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेवो डेफिनेटली यहां पर मिलेगा, ठीक है। बट ये डोमिनेट कैसे कर रहा है इन्वर्जन? हम इसके नीचे क्या लिखते हैं? प्रीडोमिनेंट इन्वर्जन। ये, अब ये क्यों है? इन्वर्जन डोमिनेट क्यों करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब ये हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया? हमने कंसिडर किया कि न्यूक्लियोफाइल इस R प्लस पर तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक ये कंप्लीटली बन नहीं जाता। इज इट ट्रू? मतलब उसके पहले क्या न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन नहीं होगा? जब ये पार्शियल स्टेट में होगा, तो ये जब RLG R प्लस बनाने जा रहा होगा, तो इस R पे प्लस आया होगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल की परफेक्ट पोजीशन होगी ना, वो बैक साइड है। इवन दो अटैक मेनली कार्बोकेटायन बनने के बाद हो रहा है, इसलिए ज्यादातर यही मिलेगा, मतलब 50-50, यानी कि इसको रेसेमाइजेशन बोलते हैं। ये रेसेमाइजेशन है, राइट। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पहले से ही R प्लस के बैक साइड, इस लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बैक साइड पोजिशनिंग होगी उसकी, यानी ज्यादा अटैक होने के चांसेस बैक साइड से हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो इन्वर्जन वाला है, यानी बैक साइड अटैक वाला प्रोडक्ट है, वो थोड़ा अमाउंट में ज्यादा है। इन्वर्जन डोमिनेट्स, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जो बेटर पोजीशन है वो बैक साइड अटैक वाली है, राइट। बट यहाँ पर मेनली रिएक्शन जो हो रही है वो कार्बोकेटायन बनने के बाद हो रही है, इसीलिए आपका रेसिमाइजेशन होगा। बट यहाँ पर बेटर है कि आप एक और वर्ड ऐड कर दें, क्या? partial racemization. It is not 100% racemization. Guys, since here it is not complete racemization, so the product will not be 100% optically inactive. So the concept which we learned in isomerism, that is important here. That concept is optical purity. तो अगर SN1 रिएक्शन के लिए हम ये बोले कि प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए कि मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट जो है 40% जो है ऑप्टिकली प्योर है ना, 40% ऑप्टिकल प्योरिटी है। तो इसका क्या मीनिंग है? 40% ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब है, जैसे पहले हम लोगों ने कभी डिस्कशन किया था, 40% ऑप्टिकली प्योर का मतलब होगा या तो 40% डेक्स्ट्रो ले लो, और जो बच गया 60% वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि इसकी वजह से कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है, ऑप्टिकल रोटेशन इस पार्ट की वजह से। अब इस 60 में 30% डेक्स्ट्रो होगा और 30% लेवो होगा। तो अगर ओवरऑल चेक करोगे तो आपको 70% डेक्स्ट्रो और 30% लेवो मिलेगा। या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 40% और करके लिख देते हैं, 40% लेवो है यहीं पर और 60% रेसिमिक है।
यही दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एक ये वाली बनती है और एक ये बनती है ना। इसमें अगर डिवाइड करोगे रेसिमिक को तो 30% डेक्स्ट्रो एंड 30% लेवो। अगर ओवरऑल देख लोगे तो ये हो जाएगा 70% लेवो एंड 30% डेक्स्ट्रो। मतलब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज व्हाट कि ये 30-70 के उसमें जाता है, 30 एंड 70, 70 एंड 30। अब अगर SN1 की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो SN1 में क्या हो रहा है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, और इन्वर्जन डोमिनेट करता है। तो मान लीजिए कि आपने 40% ऑप्टिकल प्योरिटी बोल दिया, तो 70 जो होगा ना, ये बैक साइड अटैक की वजह से हुआ, राइट। और ये 30 क्योंकि रिटेंशन कम अमाउंट में है, इन्वर्जन डोमिनेट बोला हुआ है, इसीलिए ये 30 जो है ये फ्रंट साइड अटैक बोला जाएगा। गाइस सब पर क्वेश्चन अभी करेंगे, बट उससे पहले वो अनएक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी एक डिस्कशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी लिखा हुआ था उसको कर लेते हैं। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो दिखाया था आपको, CH3 CH CH3 CHCl CH3, इसका हाइड्रोलिसिस किया था, राइट। अब इसमें सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन कंसीडर करते हैं, है ना। CH3 CH CH3 CH प्लस CH, राइट, ये कार्बोकेटाइन। अच्छा आप लोग यहीं पर आपका डिस्कशन में ये भी कर दूं, अब हमें जैसे ये तो एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना। हमें कैसे पता चला कि ये SN1 के हिसाब से हमको जानना है, हमको कार्बोकेटाइन एज्यूम करना है ना। तो बहुत आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबस्ट्रेट को चेक करो, सबस्ट्रेट को चेक करो। सबस्ट्रेट को अगर ध्यान से देखोगे तो सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है। अब वो एल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी होगा, राइट, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है ना। अगर आपको कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म करना है तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी रेट ज्यादा होगा, याद रखना। जब लेटर से आपने RCl लिखा तो अनटिल एंड अनलेस यू गेट R प्लस मिलेगा नहीं तो R प्लस प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट। इसलिए R प्लस की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, वरना R प्लस बनेगा ही नहीं, और अगर R प्लस बनेगा नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी मैटर करता है SN1 रिएक्शन में बहुत ज्यादा। इसीलिए जो टर्शरी होता है ना वो SN1 को फेवर करता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड फेवर्स SN1 रिएक्शन। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी इफ यू टॉक अबाउट SN1 रिएक्शन, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आंसर डिसाइड कर रहा है। और SN2 के लिए हम लोग ने क्या बोल दिया था, लेस क्राउडेड होना चाहिए, है ना। द कार्बन विथ विच लीविंग ग्रुप इज कनेक्टेड विद लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड कब होगा, जब वो प्राइमरी होगा। तो इसका मतलब यहां से यहां जाओगे तो ये प्राइमरी के लिए कौन, कि प्राइमरी किसको फेवर करेगा, SN2, ठीक है। अब इसमें ये जो बीच वाला है देखो सेकेंडरी, ये SN1 भी फेवर कर सकता है SN2, तो ये कैसे डिसाइड होगा। अब इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बहुत मैटर करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, स्ट्रेंथ के लिए हिसाब से जाते हैं, या फिर वीक भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फेवर करेगा SN2 को, याद रखना। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा SN1 को, क्यों, बिकॉज अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो कार्बोकेटाइन क्यों बनने देगा, वो तो डेल्टा प्लस पे ही अटैक कर देगा ना। वीक न्यूक्लियोफाइल्स फेल टू अटैक substrate directly, that is why carbocation formation is required, right। तो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो इट विल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर स्ट्रॉन्ग है इट विल नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इट विल डायरेक्टली अटैक द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर अब आते हैं वापस हम इसमें कि ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, दिख रहा है हमको साफ साफ, है ना। और न्यूक्लियोफाइल आप देखो वीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जनरली वीक होंगे,
तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो गई, SN1, हमने यहाँ देखो कार्बोकेटायन बना दिया। अब आते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स पे। तो ये जो कार्बोकेटायन है, वी ऑल नो ये स्टेबल होना चाहिए तब रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो ये कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंज कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है SN1 में, वो है कार्बोकेटायन में अंडरगो rearrangement to gain stability. अब how do we know कि whether it will rearrange or not? तो जैसे ये C प्लस जहां पर दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर रीअरेंजमेंट के बाद आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाए तो रीअरेंज डेफिनेटली करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं इस H को इस CH को दे दूं तो प्लस यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। टर्शरी इज मोर स्टेबल, ये राइट में नहीं जाएगा बिकॉज राइट में तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, एंड टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो हम इसको लिखते हैं साइंटिफिकली 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा ना, जो भी बॉन्ड ब्रेक होगा वो लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर लेकर जाएगा, सॉरी। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोलेंगे। तो जैसे H शिफ्ट करेगा, कार्बोकेटायन टर्शरी हो गया, एंड दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, दिस विल बी अटैक्ड बाय H2O और फिर इसमें OH कनेक्ट करेगा, राइट। और याद रखना, जितने आपके कार्बोकेटायंस बनेंगे वो भी प्रोडक्ट देंगे, और जब ग्राफिकल एनालिसिस करोगे तो उन इंटरमीडिएट्स को भी आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर जो H2O है, याद रखना H2O के फॉर्म में अटैक करता है, वो H प्लस OH माइनस बन के OH माइनस अटैक नहीं करता। ऑल्दो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन यहाँ डायरेक्टली दिखा दिया है, बट ये होता कैसा है, सबसे पहले तो जो R प्लस होगा वो जब H2O उस पे अटैक करेगा तो ये ROH, ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा, राइट। फिर इसमें से ये H प्लस रिलीज होगा, तब जाकर ये ROH बनता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप हुआ because ये H2O neutral था। Guys, now overall if we see for SN1 reactivity, we have to check stability of carbocation. Another important conclusion from stereochemistry point of view, that in SN1 reaction, partial racemization takes place. We get product with inversion and retention, and inversion dominates. गाइस, अब हम लोग जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्टिविटी से रिलेटेड। गाइस, ये क्वेश्चन ले लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड SN2 रिएक्शन पर। गाइस, इस क्वेश्चन की करने के बाद जो SN2 रिएक्शन का वेल्डन इन्वर्जन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आराम से डील कर पाओगे। अब इस रिएक्शन में पहली बात, हमें कैसे पता चला कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है सबस्ट्रेट को ध्यान से देखो, सबस्ट्रेट को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखता, तो ये जो कार्बन है, this carbon is actually connected to one deuterium, one carbon this side, one carbon this side. So this carbon is actually secondary carbon. Now look at this carbon, यहाँ पर भी देखो Cl connected। अच्छा, मैंने यही दो कार्बन क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप अटैच्ड है। अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बाकी लीविंग ग्रुप्स क्यों नहीं है, तो बहुत आसान है, लीविंग ग्रुप वही होगा जो वीक बेस हो, यानी स्टेबल एनायन हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि H माइनस ये लिविंग ग्रुप बन सकता है क्या, आंसर है नो, इट्स अ हाईली बेसिक, ये लिविंग ग्रुप नहीं बन सकता। क्या CH3 माइनस लिविंग ग्रुप बन सकता है, नो, हाईली बेसिक ये लिविंग ग्रुप नहीं बन सकता। Cl माइनस बन सकता है, राइट, हेलोजेंस बन जाते हैं लिविंग ग्रुप, लेकिन ये H माइनस CH3 माइनस R माइनस ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये लिविंग ग्रुप नहीं बन सकते। तो ऑफ कोर्स इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कंपाउंड Cl, one living group is attached here, one living group is attached here, so I am just checking these two carbon atoms। ये कार्बन एटम सेकेंडरी है, इसको देखो ध्यान से, तो ये कार्बन एटम इधर कार्बन से कनेक्टेड है, इधर कार्बन से, और इधर ड्यूटेरियम से कनेक्टेड है। ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन इसको कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्बन है
जिसमें H कार्बन ड्यूटेरियम और इधर दूसरा ग्रुप लगा, तो ये H और D डिफरेंट कंसीडर करेंगे कायरलिटी के लिए, है ना। तो हमारे पास ये कार्बन देखो कायरल है, ये कार्बन कायरल है, यहाँ पर ये कार्बन भी कायरल है, ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप डिफरेंट है, H और D डिफरेंट ले रहे हैं, D और C, यहाँ भी देखो DCl C2 ये सब अलग है, इसलिए ये भी कायरल है। तो यहाँ पर 4 कायरल कार्बन एटम्स है। बैक टू द मेन क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये SN2 है। तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, इधर भी ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। याद करो हम लोग SN1 के लिए क्या बोलते थे, टर्शरी का एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और SN2 के लिए क्या लिखते हैं, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, जनरल मैनर में ऑर्डर लिख कर रखते हैं। तो सेकेंडरी कॉमन है दोनों में, तो सेकेंडरी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूक्लियोफाइल चेक करें। I माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, राइट, और ये एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है। एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल बहुत चांसेस है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करे, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर गाइड किया उसने, आपको एसीटोन सॉल्वेंट दिया है, राइट। सॉल्वेंट का क्या रोल है, नॉर्मली जो SN1 मैकेनिज्म होता है ना, उसमें कार्बोकैटायन बनता है, राइट, और कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है सॉल्वेशन से। सॉल्वेशन का मतलब है सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्पेशली मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वो कार्बोकेटायंस को आसानी से सॉल्वेट कर देते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आप H2O ले लेते हो, तो ये जो R+ है ये इसको सराउंड करेगा, जो निगेटिव पोल है इस प्रोटिक सॉल्वेंट का। सो आई रिपीट, प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो सॉल्वेट अच्छे से कर लेते हैं कार्बोकेटायंस को, उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो चांसेस है कि वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करे, है ना। लेकिन इससे पहले आपको सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल भी चेक करना होता है, राइट। तो ज्यादातर क्वेश्चन में वो आपको जो है ना सपोर्टिंग फैक्टर्स देता है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी जो एसीटोन है ना, वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ये कार्बोकेटायन को उतना अच्छे से सॉल्वेट नहीं करता, इसके पास जो पॉजिटिव निगेटिव पोल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितने प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होंगे, राइट। तो ये जो है कार्बोकेटायन को उतना अच्छा स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो ये SN2 रिएक्शन फेवर करता है, SN1 फेवर नहीं करता। दूसरा, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स एनायन होता है, राइट, अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो चांसेस है कि ये सॉल्वेट हो जाए, मतलब ये भी स्टेबलाइज हो जाए, जबकि I- को तो रिएक्शन में पार्ट लेना है, राइट। अगर I- रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल्स फिर किसको फेवर करना शुरू कर देगा, SN1 मैकेनिज्म। इसीलिए यहां पर उन्होंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, एप्रोटिक, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज नहीं करता, प्लस I- की रिएक्टिविटी कम नहीं करता, राइट। और अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कम नहीं होगी तो वो चांसेस है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करे। सो गाइस कंक्लूजन क्या निकला, अगर किसी रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मेंशन्ड है तो बहुत चांसेस है कि वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तो आपकी क्लैरिटी के लिए, जैसे अगर किसी रिएक्शन में DMF मेंशन है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, लेट मी राइट द फॉर्मूला, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ N लिख दिया, CH3 डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, अगर ये मिल गया दिख गया तो मैं तो बहुत चांसेस है कि रिएक्शन SN2 फॉलो हो रही होगी। यही कहीं पर DMA लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, CH3C डबल बॉन्ड O N या CH3 तो भी बहुत चांसेस है कि वो SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा होगा। डाईमिथाइल एसिटामाइड, इसी तरह से DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। बैक टू दिस, सो सारे फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिंग है SN2 रिएक्शन के लिए। ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स है, दोनों में लीविंग ग्रुप है, सिंस यहाँ NAI एक्सेस में दिए इसलिए दोनों Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। सपोर्टिंग फैक्टर जैसा मैं बोल रहा हूँ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, I- एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये सब क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हैज फॉलोड SN2 मैकेनिज्म।
अब SN2 फॉलो हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन। याद रखना लेकिन इन्वर्जन पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता। द कार्बन विच इज कायरल एंड लीविंग ग्रुप इज कनेक्टेड टू दैट कार्बन, right? So here I minus is substituting this Cl. So inversion will take place for this carbon. I minus is attacking this carbon. So here also inversion occurs. तो दो कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं, दोनों कायरल थे रिएक्शन से पहले। इसका मतलब है कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन होने पर क्या होगा, इन्वर्जन, बिकॉज मैकेनिज्म इज SN2। अब देख लेते हैं किसमें इन्वर्जन हो रहा है। याद करो इन्वर्जन के लिए हम लोगों ने क्या करा था, वन इंटरचेंज, राइट? उस कार्बन के रिस्पेक्ट में वन इंटरचेंज। तो देखो जैसे यहाँ पर आप देखो, तो ये कार्बन में तुमने Cl हटाया, तुम्हें I लग जाना चाहिए। तुम्हें एक इंटरचेंज दिखाना है तो तुमने इस बल्कि ग्रुप के साथ इंटरचेंज किया, दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? गलती ये हो गई कि ये कार्बन भी कायरल था, जब तुम इसको लेफ्ट में लेकर आए ना, तो उधर देखो आपका इस कार्बन के रिस्पेक्ट में भी लेफ्ट राइट बदल गया। पहले ये CH3 राइट में था और ये बड़ा सा ग्रुप उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट में था। अब आप देखो ये CH3 लेफ्ट में हो गया इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए, और पूरा ये ग्रुप राइट में हो गया, यानी इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, जबकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। गाइस एक्सेस में दिया और यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं किया, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें आते सेकंड में। पहली चीज देखो सब्स्टिट्यूशन सब्जी के हुआ है क्या, तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर Cl को I किया है, नीचे वाले Cl को भी हटाकर I लग गया। अब चेक कर लेते कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ है कि नहीं। C और D दोनों में देखोगे तो यस Cl हटाकर I दोनों में किया गया। अब केवल कॉन्फ़िगरेशनल चेंज देखना है। सबसे पहले नीचे वाले कार्बन को देख लेते हैं। इसमें देखोगे तो Cl हटाकर I लगाया गया और फिर D के साथ उसको एक्सचेंज कर लिया गया, यानी वन कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ, तो इसका मतलब हो गया इन्वर्जन यहाँ पर है। ठीक है, अब ऊपर वाले कार्बन पे देखो, ऊपर वाले कार्बन, अच्छा इसमें भी देखोगे तो वही है ना, यानी यहां से डिफरेंस नहीं है दोनों आंसर में। ऊपर वाले में देखो, यहाँ और यहाँ वाले में, यहाँ वाले में क्या किया गया है कि उन्होंने इंटरचेंज किया है I का Cl हटने के बाद I का इस बल्कि ग्रुप के साथ, है ना। इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें जो Cl हटाकर D के साथ उसको एक्सचेंज किया गया। तो आपको ऐसा लगेगा कि इन बोथ केसेस इन्वर्जन इज हैपनिंग, बट एक गलती हो गई C ऑप्शन में। क्या कि उन्होंने जब ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, इसको जब एक्सचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज जो है वो इस कार्बन में भी आ गया। कैसे? आप शुरू में देखो यहाँ पर CH3 राइट में है और ये बल्कि ग्रुप लेफ्ट में है, राइट। अब यहाँ पर देखो तो CH3 लेफ्ट में है और ये बल्कि ग्रुप राइट में आ गया, यानी इस कार्बन का भी एक एक्सचेंज हो गया, जबकि ये अलाउड नहीं था, राइट। इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर हो जाएगा। Guys, consider one more question for stereochemistry of SN2 reaction. इसमें देखोगे अगेन आप सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में लीविंग ग्रुप कहां पर आइडेंटिफाई कर लो, ये आपका लीविंग ग्रुप है, राइट। H माइनस D माइनस CH3 माइनस ये लीविंग ग्रुप नहीं बन सकते बिकॉज वो हाईली बेसिक है, एनायन उनका स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज ये SN2 रिएक्शन क्यों है, ये जो कार्बन है जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट है। सेकेंडरी सबस्ट्रेट SN1 भी जा सकता है और SN2 भी जा सकता है, बट इफ यू सी SH माइनस, याद रखना जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं और चांसेस है कि वो SN2 रिएक्शन फेवर करें। SH माइनस हो गया, I माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, ये सब SN2 रिएक्शन फेवर करते हैं। ये एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो SH माइनस ये गुड न्यूक्लियोफाइल है और सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, ये SN2 हुआ। SN2 का मतलब 100% इन्वर्जन किस कार्बन का, द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू लीविंग ग्रुप।
प्रोवाइडेड द कार्बन इज कायरल, तब वो आपको इन्वर्जन विजिबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी कार्बन कायरल है, बट याद रखना यहाँ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप ए ऑप्शन में देखो, आपने आई हटाकर एसएच किया, आपने CH3 और H को इंटरचेंज कर लिया, इसका मतलब है एक यहाँ पर इन्वर्जन आपको विजिबल है। वन एक्सचेंज मीन्स इन्वर्जन, राइट। अब यहाँ पर देखो आप, तो आपने CH3 वहीं पर रखा लेकिन DH को एक्सचेंज कर लिया, यानी यहाँ भी आपने इन्वर्जन दिखा दिया, वो वैलिड नहीं है। इस वाले में देखो, आपने SH I हटाकर SH लगाया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इंटरचेंज नहीं होगा तो इन्वर्जन कैसे? तो आपने H और CH3, उसी कार्बन के H और CH3 को एक्सचेंज कर लिया। तो यस, यहाँ के रिस्पेक्ट में तो आंसर करेक्ट है। ऊपर चेक कर लेते हैं, यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं होना चाहिए एंड दैट इज विजिबल हियर। देख सकते हो आप यहाँ पर CH3, D, H और ये बड़े सा ग्रुप, सबकी पोजीशन उसी तरफ है जैसे यहाँ थी। इसका मतलब ये परफेक्ट आंसर है। यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर देख लो, ये कार्बन में देखो CH3DH, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, HCH3SH पोजीशंस वही है। इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको इन्वर्जन दिखाना था। इस वाले में देखो, इसमें क्या किया तुमने, आई हटाकर SH लगा दिया और H के साथ उसको एक्सचेंज भी कर लिया, दैट मीन्स वन इंटरचेंज, सो इन्वर्जन इज हैपनिंग हियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इसमें देखोगे तो CH3 अपनी जगह पर, लेकिन DH तुमने एक्सचेंज कर लिया, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी इन्वर्जन दिखा दिया, दोनों इन्वर्जन अलाउड नहीं है और दोनों रिटेंशन अलाउड नहीं है। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, उधर इन्वर्जन होना चाहिए, और जिसपे नहीं हो रहा है उधर इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। So B is perfect answer here. Guys, now see this question. Before we attempt this question, let me tell you about this compound which is written here. Cl is, इसको कहते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको TSCl करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टोसिल क्लोराइड भी लिखते हैं। टोसिल क्लोराइड बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करते हैं। इसका मेन काम जो है वो जैसे ROH के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं ना, ROH के साथ, ये जो OH माइनस है, OH माइनस इज कंसीडर्ड एज पुअर लीविंग ग्रुप, बिकॉज OH माइनस इज हाईली बेसिक। तो जो ज्यादा बेसिक होते हैं वो अच्छा लीविंग ग्रुप का काम नहीं करते, तो OH इज कंसिडर्ड एज अ पुअर लीविंग ग्रुप। तो एक पुअर लीविंग ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। जब ROH का रिएक्शन TSCl के साथ होता है तो ROTS बन जाता है, ये सल्फोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये गुड लीविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। सो पुअर लिविंग ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप। बहुत सिंपल है, ROH का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर कैरी करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सल्फर पे अटैक करता है। ऐसा आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा, CH3 यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पर O माइनस आया, यहाँ पर OH और R यहाँ पर प्लस आया, और यहाँ पर ऑलरेडी एक Cl लगा है। Cl इज कंसिडर्ड एज गुड लिविंग ग्रुप। अगर तुम उसका कंपैरिजन O माइनस से करते हो तो ये वापस अटैक करता है और ये बाहर निकल जाता है। इट्स काइंड ऑफ पहले एडिशन हुआ और फिर एक एलिमिनेशन यहाँ पर हुआ। ओवरऑल Cl बाहर निकल रहा है, बट हमने इसको 2 स्टेप्स में इस तरह से दिखा दिया। तो एंड में अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, CH3, ये बेंजीन रिंग है, S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा OR। ये जो O प्लस है, प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस बाहर हो जाता है और अपना बॉन्ड पेयर देकर जाएगा, और साथ में इसीलिए वो HCl निकल जाता है। राइट, इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो अब आप देखो, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है मेरे लिए OTS, ये है OTS जो यहाँ पे लिखा है, ROTS लिखा हुआ है ना, याद रखो। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। अच्छा, इसको गुड लिविंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? अगर ये लीव करेगा तो जो O पे माइनस आया ना, वो स्टेबलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। आप देखो इधर, तो इसका मतलब ये ओवरऑल गुड लिविंग ग्रुप है। गाइस, जैसे ये OTS गुड लिविंग ग्रुप है, वैसे और भी हैं। जैसे एक हम OBS लिखते हैं, तो ये एक्चुअली Br कनेक्टेड होगा पैरा पोजीशन पे,
ऐसा। इसी तरह से OMS लिखते हैं मेसिल, इसको ब्रोसिल बोलते हैं, BROSYL ब्रोसिल। इसी तरह से मेसिल होता है MS, उसके लिए लिखते हैं CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ऐसा यहाँ इस तरह से, ये हिस्सा MS है। इसी तरह ट्राइफ्लाइल है, TF उसको लिखते हैं TRIFLYL, ये होता है CF3S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अगर O लगा देंगे तो वो लीविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा। इसी तरह एक NS होता है, नोसिल करके उसको लिखते हैं, वो बेंजीन रिंग लिया हमने, और ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे दो NO2 इस तरह से कनेक्टेड है, और ये S डबल बॉन्ड और यहाँ पर O लगा देंगे तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। इसको हम NS बोलते हैं, नोसिल ग्रुप, NOSYL। So these are few similar good leaving groups. Now back to the question. अगर आप पहला स्टेप देखोगे, जहां पर आपने क्या करना है, ROH को ROTS में कन्वर्ट करना है ना। तो ये आपका देखो OH यहाँ पर है ना, यहीं पर बेसिकली आपको क्या लगा देना है, ये जो TS है, तो ये OTS बन जाएगा। और इस हैपनिंग, ये कार्बन देखो, ये कार्बन कायरल है ना, ये इस कार्बन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज आपका अटैक जो सब्सटेंस का है वो इस पे नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ उसका इंटरेक्शन है। सो CO बॉन्ड विल नॉट बी इंपैक्टेड, राइट। और इस पे तो कुछ होने ही वाला नहीं है, क्योंकि इस पे तो कुछ अटैक ही नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे A लिखने को बोला जाएगा, तो A में सिंपली क्या लिखूंगा, इधर नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसको ऐसा जैसा जो था H ब्रोकन विच, CH3 सॉलिड विच कनेक्ट कर दिया, और इधर भी कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखोगे तो H अभी भी ब्रोकन विच पे होगा, और केवल OH के बदले आपको OTS कर देना है। आई रिपीट, यहां इसलिए कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ये कार्बन इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, जो रेड कार्बन मैंने यहां दिखाया, ये इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ऑक्सीजन इज इंटरैक्टिंग। सो वट एवर चेंज आपको दिखाना है वो ऑक्सीजन से जो कनेक्शन होगा उसमें होगा, पर यहाँ तो कुछ था ही नहीं प्रीवियसली कॉन्फ़िगरेशन वाइज, तो हम वो सब नहीं करेंगे, केवल OTS लिख देंगे। अब आता है सेकेंड, ये N3 माइनस है, अगेन एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करेगा, ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, राइट। तो अभी जब OTS हटाकर आप N3 लगाओगे तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज दिखाना, इन्वर्जन दिखाना है, इस कार्बन पे नहीं, इस वाले जिसपे OTS कनेक्टेड है, बिकॉज नाउ N3 इज गोइंग टू अटैक द कार्बन, तो आपका OTS बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। यहां आपको इन्वर्जन दिखाना है। हाउ विल यू शो दैट इन्वर्जन, कुछ नहीं, केवल एक इंटरचेंज दिखा दो। तो क्या करोगे, जिसपे ब्रोकन विच पे भी H है, अब प्रोडक्ट में आप सॉलिड विच पे दिखा दो, तो और एक ये सब्स्टिट्यूशन के साथ करना है आपको। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, CH3 अभी भी सॉलिड विच पे, H will be on broken wedge, here the solid wedge H लिख देना है, और ब्रोकन वेज पे आपको N3 लिख देना है। ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज दिखाएंगे, तो ये परफेक्ट B है और ये परफेक्ट A है। Guys, now let's take a question related to reactivity of SN2. Here question says correct order of rate of SN2 hydrolysis for the following substrates. ये सबस्ट्रेट दिया है, Cl connected to CH2 connected to OMe, Me means मिथाइल, यहाँ पर ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये एलाइल क्लोराइड है, और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। गाइस, एज आई टोल्ड यू, रिएक्टिविटी फॉर SN2 ये दो चीजों से हम लोग निकालते हैं। एक, जब हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट implies more SN2 rate, और दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। In this particular question we are going to use the stability of transition state. सबसे पहले तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। इसका आंसर है 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। गाइस, लेट्स सी कैसे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले वाले केस को ले लेते हैं। सो अगर मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूं, तो इट इज लाइक दिस, ये कार्बन है
और यहाँ पर मैं ले देता हूँ ब्रोकन वेज पे एक H और एक H में डाल देता हूँ सॉलिड वेज पे। और इधर आपका लीविंग ग्रुप ये है Cl लीव कर रहा है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो बैक साइड अटैक है, राइट। और फिर ये ऑक्सीजन लिखा मैंने और ये Me मिथाइल। गैस अब आप देखो ये जो कार्बन है ये इसके लिए ये देखो ये ट्रायगोनल क्लीनर टाइप में आपको दिखाई देगा और इसका एक ऑर्बिटल में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ये जो ऑक्सीजन है ना इसका जो लोन पेयर है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांजिशन स्टेट को हेल्प करते हैं स्टेबलाइज होने में। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ बेंजीन रिंग तो उसके लिए अगर आप देखेंगे ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर सेम मैनर में अगर मैं ड्रॉ कर दूं ब्रोकन वेज पे H सॉलिड वेज पे ये पार्शियल ब्रोकन स्टेट में है डेल्टा निगेटिव में आती और ये न्यूक्लियोफाइल, राइट। द डिफरेंस इज कि ये जो पर्टिकुलर केस है बेंजाइल वाला इसमें ये जो पाई क्लाउड है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। इसी तरह से अगर एलाइल वाला आप ड्रॉ कर दोगे एलाइल में भी पाई क्लाउड है यहाँ पर भी सेम मैनर में आप दिखा सकते हो सेम वे में। ये ऑर्बिटल है कार्बन का और ये पाई क्लाउड ये स्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो ये तीनों केसेस में जो है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है। इसमें ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बेसिस पे, इसमें पाई क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी। और बेंजीन वर्सेस एलाइल अगर हम कंपेयर करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये जो बेंजीन रिंग अटैच्ड है इधर ये ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। बट अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं स्टेबलाइजेशन में, यहाँ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो ऑफ कोर्स इसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा और बेंजीन रिंग का CH2 डबल बॉन्ड CH से ज्यादा होगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ट्रांजिशन स्टेट्स का, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखो उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है ना। अब ये जो फोर्थ वाला लिखा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही, कोई यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पाई क्लाउड नहीं है इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दे दूं रिलेटिव रिएक्टिविटी का, इसके लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी अबाउट 900, इसके लिए अबाउट 200, इसके लिए अबाउट 79 और इसके लिए 0.01। गाइस ये डेटा आपको याद नहीं रखना है बट आई एम गिविंग यू डेटा जस्ट टू इंश्योर कि आपको ये क्लैरिटी हो कितना डिफरेंस से वो रिएक्टिविटी चेंज हो रहा है, राइट। अभी यहीं पर अगर मैंने CH3Cl ले लिया होता, याद रखना इससे स्मॉलर आप क्या ग्रुप लेकर आओगे, यहाँ पर ये लीस्ट क्राउडेड कार्बन है 3H है स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, राइट। यहाँ कोई भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी के लिए ग्रुप प्रेजेंट नहीं है बट इसकी रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज्यादा, इसमें लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है। और अगर डेटा वाइज जाएंगे तो इसका भी रिलेटिव रिएक्टिविटी 200 है, यानी ये बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी को मैच करता है फॉर SN2 रिएक्शन। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये जो जिसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नहीं, इन तीन में अगर आप देखो ये तीनों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स मैंने आप प्राइमरी हैलाइड्स हैं, ये तीनों प्राइमरी हैलाइड्स हैं, राइट। अभी जैसे ये है इसको इसको यहाँ पर बोलते हैं 1 डिग्री बेंजाइल, ये है 1 डिग्री एलाइल। तो ये जो 1 डिग्री बेंजाइल और 1 डिग्री एलाइल हैलाइड्स हैं ये SN2 सब्स्टिट्यूशन जा रहे हैं। गाइस जैसे ये 1 डिग्री बेंजाइल अगर मैं यहाँ पर एक और बेंजीन लगा दूं या 2 बेंजीन रिंग लगा दूं तो वो फिर SN2 के लिए उसका रेट कम हो जाएगा, वो जनरली SN2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। गाइस एक और क्वेश्चन SN2 की रिएक्टिविटी पर, ये सब डिस्कशन के बाद आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर पाओगे जो भी रिएक्टिविटी या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें पहले तो मैं आंसर लिख देता हूँ, इससे एकदम क्लैरिटी हो जाएगी आपको करना क्या है। जैसे इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4
ग्रेटर देन 5। और मैं अगर इसका डेटा भी दे दूं, एक्सपेरिमेंटल डेटा, उससे आपको रिएक्टिविटी का डिफरेंस का भी आइडिया होगा। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी 10⁵ है, इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी 200 है, इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी 79 है, ये 0.02 है, और ये नो रिएक्टिविटी। अब ऑर्डर का डिस्कशन तो बाद में, पहले ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ना, पहला कंपाउंड, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव कैसे है? 10⁵ इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी है, इतना ज्यादा ये रिएक्टिव कैसे है? इस पर्टिकुलर कंपाउंड के, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अल्फा कार्बोनिल। अल्फा कार्बोनिल, ये CH2Cl, Cl is connected to this carbon, ये अल्फा कार्बन है और इससे कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड। ये जब सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो इनका SN2 रेट बहुत ज्यादा होता है। अब इनके लिए स्पेशल, ये अपने लिए स्पेशल एग्जाम्पल हो गया, स्पेशल एग्जाम्पल। ये बिल्कुल आप माइंड में रखिएगा और इसको अलग से याद रखिए। अगर ये दिख गया तो ये लगभग नंबर 1 ही होने वाला है वहां पर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। गाइस, इफ यू रिकॉल in a normal interaction between an electrophile and a nucleophile, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरैक्ट्स विद ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां पर द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू लीविंग ग्रुप, वो लूमो से इंटरैक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईदर इनटू एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन्हीं को आप लूमो बोल रहे हैं। These low energy antibonding molecular orbitals interact with highest occupied molecular orbital of nucleophile. Now in this particular example, here we have C double bond O and CH2Cl. So in normal situation, sigma star of this CCl bond interacts with HOMO of nucleophile. But in this particular example, this C double bond O, here also have pi star. So it is believed that according to molecular orbital theory, this pi star, that is anti-bonding molecular orbital of C double bond O, and sigma star, that is anti-bonding molecular orbital of CCl, these two orbitals combine and they produce a lower energy unoccupied molecular orbital, and that lower energy LUMO interacts more with highest occupied molecular orbital of nucleophile. As a result, reactivity increases. Guys, इसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है, ये स्पेशल एग्जाम्पल आप याद रखेंगे उससे भी काम चल जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको बहुत लेकर 10+2 लेवल पे परेशान नहीं होना। गाइस, और इसको देखो, ये जो थर्ड कंपाउंड है, यहाँ पर रिएक्टिविटी किस वजह से, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हमने क्वेश्चन में, ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की वजह से है, राइट। और अगर ये CH3Cl और इसमें कंपेयर करें तो ये क्राउडेड होगा रिलेटिवली, सेकेंडरी अल्काइल, इन दोनों में भी। इसीलिए डेटा मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी दिया और इसमें भी, बिकॉज इससे छोटा ग्रुप आप लगा नहीं सकते। 3 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है, यानी लीस्ट क्राउडेड, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस 1-2 आप अपने माइंड में रखना, सो दैट अगर ऐसा कुछ आए तो आप आसानी से ऑर्डर में उसको फिट कर दो, ठीक है। अब आते हैं ये फिफ्थ जो कंपाउंड है, ये लीस्ट रिएक्टिव या नो रिएक्टिविटी क्यों है इसकी, तो आप ध्यान से देखो। Cl which is directly connected to benzene ring, इसके पास लोन पेयर है, and because of that there will be resonance होगा, तो ये जो CCl बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। So because of that double bond character, the breaking becomes difficult. So it's not about SN1, SN2. Substitution is difficult. तो अगर ये SN1 में भी आएगा तो भी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी और SN2 में भी रिएक्टिविटी बहुत कम है।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो स्पेशल पार्ट है वो अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड्स है। यहाँ पर रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये जो पाई स्टार है और ये जो सिग्मा स्टार ऑफ CCl है ये कंबाइन करते हैं और एक लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड उसका इंटरेक्शन जो न्यूक्लियोफाइल से वो बढ़ जाता है और उससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। Guys, now see this question. Question says again correct order of SN2 reaction. ये 4 कंपाउंड्स दिए। पहले तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। Guys, just see this third compound. ये वही अल्फा कार्बोनिल है। अल्फा कार्बोनिल याद करिए, पाई स्टार सिग्मा स्टार कॉम्बिनेशन, और ये MOT के बेसिस पर हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। और इसको देखो आप, ये केस जो है इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज करने के लिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, और इसमें पाई क्लाउड है ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए, राइट ना। तो ये दोनों ऑफ कोर्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब ये जो इसमें भी इसमें बेंजीन रिंग्स तुम्हें कई सारे दिख रहे हैं, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये ब्रिजेड कार्बन है, राइट, ब्रिजेड कार्बन एटम। here leaving group is attached to bridget carbon, so reactivity is low. इसको बोलते हैं रिजिड फ्रेमवर्क। ये वर्चुअली इनर्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए। आप SN1 कर लो, SN2 कर लो, सबके लिए ये रिएक्टिविटी इसकी वर्चुअली इनर्ट है ये कंपाउंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर इसको क्या बोलते हैं? इट्स ड्यू टू लार्ज रिजिडिटी ऑफ कार्बन फ्रेमवर्क, ऐसा इसको बोलते हैं अराउंड द लिविंग ग्रुप। तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, ये ऑलरेडी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में ये अब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, इसमें पाई वाला तो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। और अगर नाइट्रोजन वर्सेज ऑक्सीजन हो जाता तो नाइट्रोजन बेटर स्टेबलाइज करता, राइट ना। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आंसर निकाला, ये भी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर निकाला, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया, और ये लार्ज रिजिडिटी ऑफ कार्बन फ्रेमवर्क। गाइस, नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन। ये क्लोराडेन है, ये पेस्टिसाइड की तरह इसको यूज करते हैं। इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया गया और हमें प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है, राइट। पहली चीज, इसमें अगर आप देखोगे तो डिफरेंट पोजीशंस जिनके साथ लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, ये आप इसको एक्सेस में ले सकते हैं। ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है, इसको SN2 हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, राइट। तो Cl विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH। ये जो Cl आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सेकेंडरी है, ये सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। ये यहाँ पर सेकेंडरी है, सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। ये देखिए, ये ब्रिजेड कार्बन वाला Cl है, ये सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है SN2 के लिए। इसको देखो, याद करो, अभी हमने जैसे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली Cl कनेक्ट किया था, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली Cl या कोई दूसरा हेलोजन है तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड हो जाता है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड करेक्टर है तो डिफिकल्ट है ब्रेक करना, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ फिजिबल नहीं है। यानी ये Cl भी सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, ये Cl भी सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करा दें तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लेट मी राइट दैट, यहां पर Cl के बदले OH कर देना है, यहां पर OH कर देना है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यानी यहाँ का Cl एज सच लिख देंगे, यहां पर दोनों Cl दो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये Cl और ये Cl ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। अब यहाँ आप फ्यूचर में आप लर्न करोगे कि अगर किसी कार्बन पे दो OH लग जाएं, राइट, तो ये थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है, और एक H2O इसमें से बाहर कर दो तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O। ये फ्यूचर में इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए इतना याद रखना है, सेम कार्बन हैविंग 2 OH ग्रुप्स, ये जेमिनल वाला केस हो गया, देन H2O विल बी रिमूव्ड, और इसका जो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो वो ये है। यहां पर OH रह जाएगा, यहां OH रह जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O इस कार्बन के साथ, यहाँ Cl एस सच, यहाँ Cl एस सच, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा।
Guys, consider this question. This question, we have to write SN1 order. Four compounds are given here. पहले तो मैं आंसर लिख देता हूँ. 2 greater than 1. I'm talking about SN1 hydrolysis. पहले इस फोर्थ कंपाउंड की बात कर लेते हैं. फोर्थ कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ी देर पहले हमने इसका डिस्कशन किया था SN2 में. ये Cl जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड, इसीलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला. तो अगर यहाँ पर डबल, लेट मी राइट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ब्रेकिंग क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाएगी. सो फॉरगेट अबाउट SN1 रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन ही नहीं जा पा रहा है. ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया. अब जो बच गए SN1 है, SN1 में स्ट्रेट आपको क्या ड्रॉ करना होता है, कार्बोकेटाइन. जस्ट चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंप्लाइज मोर रिएक्टिविटी फॉर SN1. अब आप देखो, जैसे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका डिस्कशन किया हुआ है. टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है. कंफ्यूज मत होना. भले ही यहाँ पर रेजोनेंस आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर आपके 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. उनकी वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन है, मैक्सिमम इंडक्टिव है. तो ये जो दो वीक फैक्टर्स, बट वो दोनों वीक फैक्टर्स मिल गए आपस में, तो वो पीक पर वर्क कर रहे हैं, मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है फिनाइल रिंग का, वो उसको डिस्टेबलाइज करता है. इवन दो यहाँ रेजोनेंस है, ये ऑर्डर में ऐसे आता है. ठीक है. और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, वी ऑल नो कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कम होता है, वो पीछे चला गया. तो अगर ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, अकॉर्डिंगली उनके हैलाइड्स का रिएक्टिविटी SN1 के लिए वैसा हो जाएगा. सिंपल है गाइस. अगर हमने यहीं पर एक केस ये ले लिया होता, CH3O या फिर N यहाँ ले सकते हैं, CH2Cl, इसका अगर आप एल्काइल, इसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो वो कार्बोकेटाइन जो इसका ऑक्सीजन का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो रेजोनेंस में पार्ट लेता है. एंड इसका जो स्टेबलाइजेशन है रेजोनेंस के थ्रू, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है. तो अगर आप ये कंपैरिजन में लेकर आएंगे, तो ये नंबर 1 रिएक्टिव हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के लिए. ठीक है गाइस. दिस क्वेश्चन ऑल्सो टॉक्स अबाउट SN1 रिएक्शन. तो SN1 रिएक्शन, एज वी नो, हमें कार्बोकेटाइन ड्रॉ करना होता है. तो सबका कार्बोकेटाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. तो पहला जो कंपाउंड है, उसका कार्बोकेटाइन अगर आप देखोगे तो ऐसा है, और ये रेजोनेंस करता है. तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख दूं, इट विल बी लाइक दिस, राइट. दूसरे वाले के लिए अगर कार्बोकेटाइन ड्रॉ करते हो, तो इट विल बी लाइक दिस. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख दो, पीएच यहां पर आएगा प्लस, ऐसा दिखेगा. फिर थर्ड के लिए भी आप लिख सकते हैं, ये कार्बोकेटाइन, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है. ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है यहाँ पर, ये थर्ड. फोर्थ के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस मिल जाएगा, है ना, ये ऐसा दिखेगा, राइट. ये फोर्थ हो गया अपना. फिफ्थ वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है. फिफ्थ तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे तो अगेन ये केस डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डबल बॉन्ड कार्बन से, तो दिस बॉन्ड बिकम्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड, सो ब्रेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट. तो ये तो अपने लिए लीस्ट हो गया, लीस्ट रिएक्टिव. गाइस, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं. जैसे आप ये इस वाले केस को कंसिडर कर लो, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें आप देखोगे तो इसमें ये एक एंड ऐसा है जिसमें एलाइलिक आपको वन, लेकिन आप इसको देखो, ये एलाइलिक भी है, मतलब C पे प्लस आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. तो इधर आपको रेजोनेंस एलाइलिक वाला दिख रहा है, और ये 3 डिग्री है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है. तो बेंजाइलिक वाली सिचुएशन से भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, देन रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी. तो ये जो कंपाउंड है फर्स्ट, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये हैलाइड का रिएक्टिविटी SN1 के लिए बहुत ज्यादा है. यहाँ पर एक एंड में कार्बन जो है वो 3 डिग्री भी है और एलाइलिक भी है, तो रिएक्टिविटी इसका सबसे ज्यादा है. 1 को आप सबसे पहले लिख देंगे. फिर कौन आएगा, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपेयर, अब ये बेंजाइलिक है और 2 डिग्री है,
लेकिन ये 3 डिग्री है। मैंने बार बार बोला कि 3 डिग्री का जो स्टेबिलिटी है वो बेंजाइलिक से ज्यादा है, बेंजाइलिक और एलाइलिक की स्टेबिलिटी से। तो ये आपको ज्यादा रिएक्टिविटी देगा। तो ये हमारे लिए हो गया नंबर 2 पे, दैट मीन्स 3 यहाँ लिख देंगे। फिर अगर आप देखोगे तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर रेजोनेंस, इसमें तो ये तो केवल एलाइलिक है, तो पीछे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 डिग्री भी मिल रहा है, बेंजाइलिक और एलाइलिक भी मिल रहा है, सो ऑफ कोर्स इससे ज्यादा होगा। तो मेरे लिए ये यहाँ 3rd नंबर पे आ गया। फिर आप इसको चूज कर लोगे, ये 4 यहाँ पर हो गया। और 5th कंपाउंड यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, CCl। गाइस आई हैव रिटन हियर फ्यू कंपाउंड्स, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, SN1 SN2 के रेट्स के लिए। जैसे ये कंपाउंड है, अभी मैंने आपको बताया अल्फा कार्बोनिल वाला केस है ना। तो यहाँ पर MOT के बेसिस पे हम SN2 की रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं। बट अगर SN1 में जाओगे तो कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा, C डबल बॉन्ड इज विथड्रॉइंग ग्रुप, सो दैट विल मेक दिस कार्बोकेटायन अनस्टेबल, सो नो रिएक्शन यहाँ। और ये एक्सीलेंट है। ये यहाँ पर अगर SN2 जाओगे तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर भी। इसीलिए देखो ये वेरी गुड वेरी गुड। और कार्बोकेटायन भी स्टेबल है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड ऑलमोस्ट नो रिएक्टिविटी फॉर SN2, स्टेरिकली क्राउडेड है। लेकिन SN1 के लिए वेरी गुड रिएक्टिविटी। ये बेंजाइल वाला केस है, ये गुड फॉर SN2। ऐसा हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है कि पाई क्लाउड जो है वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज करता है SN2 के केस में, और इसमें SN1 में कार्बोकेटान का स्टेट स्टेबलाइजेशन। सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग एलाइल हैलाइड्स के लिए देते हैं। दोनों ये SN1 SN2 दोनों जाता है। गाइस इधर भी देखो, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये SN1 SN2 दोनों पार्टिसिपेट करता है। फिर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल आपने कैसा लिया है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 फेवर करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में जैसे OH माइनस ले सकते हो, CN माइनस ले सकते हो, SH माइनस ले सकते हो, N3 माइनस ले सकते हो, ये सब स्ट्रॉन्ग, I माइनस ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में आएगा और SN2 फेवर करेगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, हाइड्रोलिसिस H2O है, सॉल्वोलिसिस, तो SN1 फेवर करता है। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और ये मिथाइल हैलाइड है, तो ऑफ कोर्स ये SN1 के लिए नो होगा यहाँ पर। और ये दोनों एग्जांपल्स देखो, इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसमें ये यहाँ कार्बोकेटान पॉसिबल नहीं है, ब्रिजिड कार्बन और रिजिड फ्रेमवर्क है, इसलिए SN2 भी फिजिबल है। तो दोनों के लिए नो नो यहाँ पर भी है और इधर भी है। गाइस टेक दिस क्वेश्चन, in 80% ethanol at 55 degrees Celsius, isopropyl bromide reacts with hydroxide ion according to the following kinetic equation. Rate is expressed as mole per liter per second. Rate expression is given here, 4.7 into 10 raised to minus 5 Rx concentration, OH minus concentration, plus 0.24 into 10 raised to minus 5 Rx concentration. Question says what percentage of isopropyl bromide reacts by SN2 mechanism when concentration of OH minus is 0.001 m, 0.01 m, 0.1 m, 1 m, 5 है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो रेट एक्सप्रेशन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। SN2 रिएक्शन बाइमोलिकुलर है, यानी कि उसमें जो ऑर्डर 2 है इसका मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन जो न्यूक्लियोफाइल का और कॉन्सेंट्रेशन जो एल्काइल हैलाइड है दोनों पर डिपेंड करता है रेट। इसका मतलब ये जो पहला दिया हुआ है ये SN2 की वजह से है। SN1 ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, उसमें रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं करता। तो ये वाला जो पार्ट है वो SN1 है, राइट। तो अगर वो आपसे पूछता है परसेंटेज ऑफ दिस आइसोब्रोमाइल मतलब एल्काइल हैलाइड दैट रिएक्ट्स विद बाय SN2 मैकेनिज्म, तो आपको ये वाला कितना रिएक्शन होता है उस पे आपको आंसर निकालना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट तो अनचेंज्ड है, चेंज ये वाला पार्ट हो रहा है, इसका मतलब SN2 का रेट बढ़ेगा, यानी परसेंटेज जो SN2 रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं परसेंटेज ऑफ SN2 के लिए तो ये हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन जो बनेगा, बिकॉज यहाँ पर जो SN2 है वो 4.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 और इधर जो है वो Rx कॉन्सेंट्रेशन है, ये यहां लिखा OH माइनस अपॉन में
ये जो टोटल है ये टोटल यहाँ पर लाएंगे, मतलब R जो SN2 वाला है और R जो SN1 वाला है, जबकि ये R केवल किसका है, SN2 वाला है। अब इसमें आपको केवल क्या करना है, क्योंकि RX तो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन केवल आप डालोगे इसमें, अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज SN2 का आ जाएगा। पहले केस में परसेंटेज जो आएगा आप आंसर निकालना, ये 1.9% के आसपास आता है। दूसरे ये SN2 रिएक्शन के लिए है, SN2 का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। दूसरे वाले केस में जो परसेंटेज आता है वो अबाउट 16% के आसपास आता है, 16.4 अप्रोक्सीमेटली। थर्ड में ये करीब करीब 66% रीच करता है। फिर ये फोर्थ वाले यानी जब कॉन्सेंट्रेशन आपका 1m हो गया तो ये करीब 95% रीच करता है, और ये जब 5m पे जाएगा तो 99% हो जाएगा। तो आप एनालाइज अगर आप करो तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, SN1 SN2 दोनों हो सकता है, लेकिन आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जब आपने बहुत ज्यादा ले लिया न्यूक्लियोफाइल का तो SN2 का जो परसेंटेज है रिएक्शन होने का वो बहुत ज्यादा हो गया। So as concentration of nucleophile increases, SN2 increases. Simple conclusion. Now guys, see this question. This is very good question. Question says, suppose under SN1 conditions, 2-bromooctane of specific rotation minus 21.6 degree was formed to give 2-octanol of specific rotation plus 4.12 degree. If optically pure 2-bromooctane and 2-octanol have specific rotations minus 34.6 degree and plus 9.9 degree respectively, then calculate number 1 optical purities of reactant and product, number 2 percentage racemization and inversion accompanying in reaction, third, percentage of front side and back side attack in SN1 reaction. Guys, first part question का बहुत आसान है, ऑप्टिकल प्योरिटी आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिखता हूं, ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, जो भी स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड जो स्पेसिफिक रोटेशन है अपॉन ये जो प्योर कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन है, प्योर कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। तो अगर आप रिएक्टेंट्स के लिए लेंगे तो -21.6 है, लेवो रोटेटरी है, तो 20 हमें माइनस प्लस से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि माइनस का मतलब लेवो रोटेटरी और कुछ नहीं है। तो 21.6 अपॉन ये है 34.6 इंटू 100। इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो करीब करीब आता है ये 62%, ये फॉल करता है करीब 62%। आप निकाल लेना इसको। और इसी तरह से ऑप्टिकल प्योरिटी अगर आप निकालेंगे प्रोडक्ट के लिए तो वो फॉर्मूले में जब रखेंगे तो उसके लिए आएगा ये 4.12 अपॉन 9.9 इंटू 100, द वैल्यू कम्स अराउंड 41%। राइट, इसको कभी 100 मत कर देना काउंट करके, ये अलग है, ये रिएक्टेंट्स के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है। राइट, तो ये ऑप्टिकल प्योरिटी है एंड वी हैव द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी। कि ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या होगा कि अगर ये 62% ऑप्टिकल प्योरिटी, इसका मतलब केवल 62 आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स, केवल 62 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन शो कर पा रहे हैं, बाकी रेसेमिक मिक्सचर के फॉर्म में परसेंटेज प्रेजेंट होगा। राइट ना, अब आप सोचो ये SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में होता क्या है, आपका जो भी एल्काइल लिविंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है, एल्काइल हैलाइड यहाँ पर है जैसे ब्रोमोऑक्टेन, उसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस केस में OH माइनस अटैक करा रहे हैं हम लोग, तो वो इन्वर्जन भी जाएगा और रिटेंशन भी जाएगा। इन्वर्जन डोमिनेट करता है, यानी वो ज्यादा अमाउंट में होगा इन्वर्जन। तभी आप देखो जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो माइनस से प्लस हो गया, इन्वर्जन डोमिनेट कर रहा है, तभी तो वो प्लस 4.12 यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस। अब सेकेंड क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये अनफॉर्चुनेटली जो रिएक्टेंट है वो 100% ऑप्टिकली प्योर नहीं है, ये ये यहाँ पर एक्चुअली में ऑप्टिकल प्योरिटी 100% नहीं है। तो
तो हमको सबसे पहले 100% जो ऑप्टिकली प्योर रिएक्टेंट होगा उसके लिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो निकालना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहाँ जो आपने प्रोडक्ट की ऑप्टिकल प्योरिटी 41% निकाली, ये तब है जब रिएक्टेंट कितना परसेंट ऑप्टिकली प्योर था, 62%। ये 62% जब रिएक्टेंट ऑप्टिकली प्योर है तो आपको ये ऑप्टिकल प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। जबकि हमें 100% जो ऑप्टिकली प्योर रिएक्टेंट होगा उससे जो हमें ऑप्टिकल प्योरिटी आएगी वो परफेक्ट इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 62 के लिए 41 है तो 100 के लिए कितना होगा, तो ये अगर आप निकालेंगे तो ये करीब फॉल करता है, मेरे पास जो डिटेल्स है 67%। 67%, 67%। अब ये आपको क्लियर आइडिया देगा। अगर 67% ये ऑप्टिकल प्योरिटी है और आपको क्लियरली पता है कि डेक्स्ट्रो पार्ट डोमिनेट करता है, इसका मतलब है 67% में डी लिखूंगा तो इधर जो बच गया 33% वो हो जाएगा रेसिमिक, वो होगा रेसिमिक, और ये आ गया डेक्स्ट्रो वाला पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब ये 33 को आप फर्दर डिवाइड कर दो। 33 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 16.5 और ये 16.5 आएगा। ये 16.5 डेक्स्ट्रो और ये 16.5 लेवो। तो इसका मतलब आपको टोटल में जब जाओगे तो कितना डेक्स्ट्रो आएगा, इसमें अगर मैं निकाल कर इधर रखूंगा तो ये आपका जो आएगा 83.5% ये डेक्स्ट्रो आया, और आपका जो लेवो है वो 16.5% है। ये आपका फाइनल जो प्रोडक्ट में है, परसेंटेज के बेसिस पे जाएंगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसका हमारे जो पार्ट्स क्वेश्चंस के थे उनसे कैसे रिलेशन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज रेसिमाइजेशन एंड इन्वर्जन अकम्पनिंग इन रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर उसमें देखो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 33% जो है वो रेसिमाइजेशन हो रहा है, 33% रेसिमाइजेशन और 67% आपको इन्वर्जन मिल रहा है, राइट। क्योंकि ये माइनस से प्लस हुआ, 67% आपकी वहां पर ऑप्टिकल प्योरिटी है, वो इन्वर्जन को इंडिकेट करेगी, राइट। लेकिन अगर आप फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक सोचेंगे तो जो भी फ्रंट साइड अटैक हुआ है उसमें आपको लेवो मिला, तो लेवो आपको 16.5% मिला। बैक साइड अटैक वो टोटल डेक्स्ट्रो को इंडिकेट करेगा तो वो 83.5% है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका फ्रंट साइड अटैक जो है वो लेवो वाला है, वो 16.5% हो जाएगा, और बैक साइड अटैक अबाउट 83.5%, और इसमें परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन अबाउट 33% एंड इन्वर्जन 67%। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको SN1 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करता है फ्रॉम स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो रिएक्टेंट था वो 100% ऑप्टिकली प्योर नहीं था, तो जो प्रोडक्ट की ऑप्टिकल प्योरिटी आएगी उससे आपको करेक्ट आइडिया नहीं लगेगा। तो पहले आप ऑप्टिकल प्योरिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निकाल लो, फिर जो रिएक्टेंट है वो 100% ऑप्टिकली प्योर बना लो, उसको आप फिर कन्वर्ट कर लो प्रोडक्ट की ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आएगी, और जो फाइनल आपको प्रोडक्ट की ऑप्टिकल प्योरिटी आई किसके रिस्पेक्ट में, 100% ऑप्टिकली प्योर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, वही आपको फाइनल आंसर देगा, राइट। इसमें 67% आया, और वो 67% का मतलब होगा कि 67% डेक्स्ट्रो है जो कि इन्वर्जन को इंडिकेट कर रहा है, और 33% रेसिमिक होगा क्योंकि उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो आ रही है। उसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो उसमें भी हाफ डेक्स्ट्रो होगा और हाफ लेवो होगा। तो टोटल आपका डेक्स्ट्रो, आप डेक्स्ट्रो ज्यादा क्यों वो क्लियर है यहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस 4.12 था, तो आपको इस तरह से आएगा 83.5% डेक्स्ट्रो जो बैक साइड अटैक हुआ, और 16.5% लेवो आया जो फ्रंट साइड अटैक। Guys, consider these two questions. इनमें SN1 हाइड्रोलिसिस है, तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर दिए हैं so that we can understand the importance of carbocation rearrangement during reaction.
तो जैसे पहले वाले केस में अगर आप देखो SN1 रिएक्शन है तो स्ट्रेट आपको कार्बोकेटायन पहले ड्रॉ कर देना है। तो कार्बोकेटायन जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसा, राइट, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस अगर रीअरेंजमेंट के बाद आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। तो इसमें जैसे देखोगे ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू वन मिथाइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन एंड वन फिनाइल, राइट। तो इसमें ये जो अगर ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, और बेंजाइल कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता है। तो हम, और यहाँ पर अगर मिथाइल रहेगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन भी होगा, राइट। तो इट इज बेटर कि आप यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कराएं। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ये अपने बॉन्ड पेयर के साथ जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो कार्बोकेटायन आपका बेस्ट यहाँ पर पॉसिबल हो गया ये, राइट। ये कार्बोकेटायन टर्शरी भी दिख रहा है और बेंजाइल कार्बोकेटायन भी है, इसीलिए सबसे ज्यादा अब फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि जो H2O का अटैक होगा वो इसी पर होगा। तो ये ऐसा दिख जाएगा। यहाँ पर आप H2O का याद रखना, H2O ब्रेक होकर के OH माइनस में अटैक नहीं करता, वो डायरेक्ट अटैक करता है, इसीलिए तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। फिर H प्लस निकल जाएगा और फाइनली यू विल सी कि इसमें केवल आपको OH कनेक्टेड दिखेगा, लाइक दिस। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ऑल्दो ये मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ से भी जितने भी आपको कार्बोकेटायंस मिलते हैं, हर कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां से भी आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, बट वो माइनर अमाउंट में मिलेगा। लेट मी राइट दैट, ये ऐसा, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरली है। अगर आप कायरालिटी के बेसिस पे जाएंगे तो जहां पर भी आपको कायरल कार्बन मिल जाएगा वहां पर एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हमने वो आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर एक कायरल कार्बन जनरेट होगा तो टू उसका एनेंशियोमर भी लेंगे, और अगर 2 कायरल कार्बन एटम्स जनरेट हो जाते हैं तो फिर हमारा 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला अनसिमेट्रिकल केस के लिए लग जाएगा। गाइस कंसीडर दिस केस, इसमें अगर आप ड्रॉ करते हैं कार्बोकेटायन, फर्स्ट कार्बोकेटायन, इट इज लाइक दिस, ये कार्बोकेटायन है, ठीक है ना। अब इसमें क्लियर है, पहले तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसमें भी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है इसके पास ऑप्शंस क्या क्या है, इसके पास हाइड्रोजन यानी ये बॉन्ड पेयर दे सकता है, ये अपना ये वाला बॉन्ड पेयर दे सकता है, अपना ये बॉन्ड पेयर, ये दो बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं क्योंकि रिंग का पार्ट है। हाइड्राइड का अलग है, अगर हाइड्राइड देंगे तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। बट व्हेनेवर पॉसिबल, आप देखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कभी अगर रिंग का एक्सपेंशन 6 मेंबर रिंग पर जाता है तो वो हमेशा फिजिबल होगा, राइट, वो हमेशा फीजिबल होगा। तो 5 मेंबर रिंग यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं ये बॉन्ड पे ऐसे करा दूं ये, तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। देखो आप डिजाइन वैसे ही रखिएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट मी राइट दैट, ये ऐसा ऐसा गया, ये एज सच ऐसा ही है। अब ये जो कार्बन है ये पहले यहां से कनेक्टेड था, वहां से हटकर यहाँ जा रहा है। आप देखो लॉस में कौन है, लॉस में ये कार्बन, इसके पास कुछ नहीं, तो अभी प्लस यहाँ पर दे देंगे क्योंकि इसी का बॉन्ड पेयर आपने दिया हुआ है, राइट। इसको और अच्छे से लिख लो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो यहाँ ऑब्वियसली आप शिफ्ट कराओगे तो ये जो इथाइल है, दोनों इथाइल ग्रुप्स हैं, कोई वो नहीं है, तो इथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे 1,2 C2H5 माइनस, इथाइल शिफ्ट इसको बोल देंगे। तो ये हो जाएगा फाइनली ऐसा, और प्लस यहाँ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जब H2O अटैक करेगा तो बस OH आप कनेक्ट कर दो, प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बताया H2O अटैक का। तो बस ये ऐसा और यहाँ पर OH लगा दो, राइट। ये फाइनल है, स्ट्रक्चरली ऐसा है। बाकी आप कायरल कार्बन देख सकते हैं और हर कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक कायरल कार्बन अगर पूरे मॉलिक्यूल में होगा तो प्लस इन एंशोमर लिख देंगे, और अगर एक से ज्यादा होगा और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा।